Hello friends, once again welcome in the my YouTube channel. In this video, I will focus on the second part of the chemical energetic. In the last video, I have already discussed the some important basic concept necessary to study of the thermodynamics. First law of thermodynamics, its mathematical forms and for different types of process. Now friends, in this video, I will focus on the some necessary concept which are studied for the thermodynamics. Now friends, we know that the work done in the one steps, that is dW equal to minus P external delta V minus P external V2 minus V1. Therefore, work done in one step process or irreversible process, dW equal to minus P external dV. But the work done in the reversible process, how will you determine? Friends, in the reversible process, we know that the infinite number of steps are take place. Therefore, work done is maximum. Therefore, maximum work done in the reversible process are determined by using integration way. Therefore, integration of dW equal to integration in the limit of 1 to 2 P external dV. Therefore, the first integration with respect to volume. Therefore, pressure converted into volume by using ideal gas equation. P equal to nRT. Therefore, P equal to nRT upon V. Putting this value in the integration formula. Therefore, W max becomes minus integration of 1 to 2 nRT upon V into dV. N is the number of moles. R is a gas constant. T is a temperature. Therefore, it is considered as a constant. Take the out of the integration. Therefore, integration of dV upon V is remaining. We know that the integration of dx upon x is a ln of x. Therefore, integration of dV upon V, that is ln of V, in the limit of 1 to 2. Applying the higher limit minus lower limit. Therefore, W max equal to minus nRT ln of V2 minus ln of V1 minus nRT ln of V2 upon V1, because ln of A minus ln of B, that equal to ln of A upon B. The log to the base C convert into log to the base 10 by multiplication of 2.303. Friends, the volume terms is also converted into pressure terms. The volume is inversely proportional to the pressure. Therefore, this equation become 2.303 nRT log of P1 upon P2. Now, the status of this system are explained by using properties. Such a property are again classified either into step function and path function. The property which are depends on the initial and final state of the system, it called step function. The property which not depends on the initial and final state of the system is called a path function. The step function not depends on the path taken to reach the specific value of that. The path function which depends on the path taken to reach the specific value. The step function can integrate using only the value of final and initial state. The path function need the multiple integrals and limit of the integration in order to integrate. Multiple steps required result in the same value of the step function. The multiple steps result in the different value of the path function. Based on established state of the system, the path function based on how to state of the system was established. Normally, the step function represented by uppercase. Generally, path function are represented by lowercase letters. The pressure, volume, temperature, delta E, delta H, delta S are the example of test function. The heat and work done are the example of path function. Friends, heat capacity means it is a ratio of heat absorbed by a material to the temperature change. Therefore, heat capacity is a derivative of the heat with respect to temperature. Means the rate of change of heat with respect to temperature. The specific heat capacity means
the heat capacity in calorie per gram is called as specific heat capacity. The specific heat capacity equal to heat capacity upon weight. Weight are expressed in terms of grams. Heat capacity at constant pressure means it is the ratio of heat absorbed by a material to the temperature change at a constant pressure. It is denoted by Cp. Therefore, Cp equal to dQp upon dt. The heat absorbed at constant pressure, nothing but the enthalpy. Therefore, this is also written ds upon dt. Therefore, heat capacity at constant pressure is a rate of change of heat at constant pressure with respect to temperature, or the rate of change of enthalpy with respect to temperature. Now, heat capacity at constant volume, that is it is a ratio of heat absorbed by material to the temperature change at a constant volume. It is denoted by Cv. Therefore, dQv upon dt means heat absorbed at constant volume with respect to change of temperature. Hence, the Cv is also defined the rate of change of internal energy with respect to temperature, because the heat absorbed at constant volume, it is nothing but the chain of internal energy. Friends, we have already focused the sum relation in the 11th 12th standard, that is Cp minus Cv equal to Nr. Now दोस्तों, समझो समर वेकेशन में आपने बहुत सारा काम किया है और आप थक गए हो, आपको विश्राम करना है और आप देखते हो कि आपको दो तरह के बेंच दिखाई देते हैं। एक जो बेंच है वो लकड़ी का बना हुआ है दोस्तों, और एक जो बेंच है वो आयरन का बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, आफ्टरनून में ऑफ कोर्स जो लकड़ी का बेंच है वो कम तपा हुआ होगा और जो आयरन का बेंच है वो ज़्यादा तपा हुआ होगा। इसलिए विश्राम करने के लिए आप लकड़ी का बेंच चॉइस करते हो दोस्तों, मतलब आप लकड़ी के बेंच की तरफ जाओगे दोस्तों, क्योंकि लकड़ी के बेंच की हीट कैपेसिटी क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। लेकिन आयंस की हीट कैपेसिटी कम होने के वजह से वो थोड़ी बहुत हीट एब्सॉर्ब करते हैं और बाकी सब हीट क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसके वजह से वो बेंच क्या होता है दोस्तों, तपता है दोस्तों। इस तरह से हीट कैपेसिटी का यूज हम कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, एनर्जी और इंथैल्पी क्या होती है दोस्तों? वेरी सिंपल, द हीट एब्सॉर्ब और रिलीज फ्रॉम अ सिस्टम अंडर कांस्टेंट प्रेशर, it is known as enthalpy, and change in enthalpy that result from a chemical reaction is the enthalpy of reaction. Enthalpy is written by capital suffix H. Therefore, H is a sum of internal energy and pressure volume energy, that is H equal to E plus PV. Therefore, chain of enthalpy equal to chain of internal energy plus P delta V. The pressure is a constant. दोस्तों, अलग अलग इंथैल्पी के अलग अलग टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो होता क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर कोई भी रिएक्शन में हम एक मोल कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो कितनी इंथैल्पी चेंज होती है, उसको कहते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो, standard enthalpy of formation is also called standard heat of formation of a compound, is a chain of enthalpy during the formation of a mole of substance from its constituent element with all substances in their standard state. आप यह देख सकते हो दोस्तों, हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन गैस के साथ की तो अमोनिया गैस तैयार होता है। तो एक मोल अमोनिया गैस तैयार होने के लिए कितनी इंथैल्पी चेंज होती है, उसको कहते हैं हम दोस्तों स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया गैस। दोस्तों, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, दोस्तों अगर हमने एक मोल कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मतलब उसको कंबस्शन किया, तो कितनी इंथैल्पी चेंज होती है, दैट इज नथिंग बट द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज द heat energy given out when
1 mole of the substance burn completely in oxygen. Therefore, combustion reaction are exothermic because during combustion reaction the heat is evolved. Therefore, heat of the system is decreases. It is denoted by negative sign. Therefore, delta S for combustion reaction is a negative. The standard enthalpy chain फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोस्तों, जब भी हम एसिड बेस की रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रल कंपाउंड तैयार होता है। ये न्यूट्रल कंपाउंड एक मोल तैयार होता है, तब कितनी इंथैल्पी चेंज होती है उसको कहते हैं हम दोस्तों इंथैल्पी चेंज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इंथैल्पी चेंज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ when solution of acid and alkali react together under standard condition to produce 1 moles of water and salt. The standard condition means the reaction takes place generally at 1 atmosphere. दोस्तों, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेन ऑफ रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? वेरी सिंपल। जब भी एक मोल हम प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों, तो कितनी इंथैल्पी चेन होती है? दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेन ऑफ रिएक्शन. The enthalpy chain that occur in a system when chemical reaction transform one moles of matter under the standard condition. Energy of enthalpy chain of reaction is determined by summation of the total bond energy of the reactant minus the summation of the bond energy of the product. दोस्तों, ये बॉन्ड एनर्जी क्या होती है इसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, लेकिन अभी सिंपल bond energy means the energy associated in the bond, that equals bond energy. The bond energy of the reactant minus bond energy of the product, that gives the enthalpy chain of the reaction. That is very simple formula. Now, in the chain of enthalpy of the sublimation, you know that the sublimation process means the solid compound directly convert into gaseous form. That is called sublimation process. So, enthalpy chain for sublimation process is a chain of enthalpy during the sublimation of 1 moles of the solid compound directly into gaseous form in their standard state. दोस्तों, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखता है एट -57 डिग्री को वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन उसके बाद उसका तुरंत गैस के फॉर्म में कन्वर्जन होता है दोस्तों। तो ये मोल कंपाउंड गैस में कन्वर्जन होने के लिए कितनी इंथैल्पी चेंज होती है उसको कहते हैं हम चेन ऑफ इंथैल्पी फॉर द सब्लिमेशन प्रोसेस. Carbon solid current to carbon gas, that is the sublimation process. During this process heat is absorbed, therefore heat is increases, therefore delta S is positive. दोस्तों, मैंने कहा था बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, इसके ऊपर हम फोकस करने वाले दोस्तों. कंसिडर द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, therefore this bond is non-polar covalent bond. दोस्तों, covalent bond means the bond is formed by equal sharing pair of electron between the atoms. तो दोस्तों, अगर ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना है तो दोस्तों हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा, जिसके जरिए ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है. अगर दोस्तों ये बॉन्ड फॉर्म होता है तो यहाँ एनर्जी इवॉल्व होती है, मतलब बॉन्ड फॉर्म होते वक्त एनर्जी इवॉल्व होती है और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें हीट सप्लाई करना पड़ती है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है. How much amount of energy is absorbed for breaking of the 1 moles of bond, that is nothing but the bond energy. दोस्तों, यहाँ H2 की बॉन्ड एनर्जी 434 किलोजूल पर मोल देख सकते हैं दोस्तों. वैसे दोस्तों अलग अलग कंपाउंड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए कुछ बॉन्ड स्टेबल होते हैं और कुछ बॉन्ड वीकर होते हैं. अगर दोस्तों बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्टेबल होता है दोस्तों. आप यहाँ देख सकते हो HCl की बॉन्ड एनर्जी 432 है, HBr की बॉन्ड एनर्जी 370 है आणि SI की बॉन्ड एनर्जी 295 है. मतलब SI का बॉन्ड ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू HCl और HBr. तो दोस्तों SI का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, इसलिए आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप कहलाता है दोस्तों. बॉन्ड एनर्जी अगर जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है, तब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है दोस्तों. लेकिन दोस्तों जब बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो हमें एनर्जी देना पड़ती है, मतलब कंपाउंड एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, उसके वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है दोस्तों, पॉजिटिव होती है. देयरफॉर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. द बॉन्ड इज फॉर्म, द एनर्जी इज
release, therefore it is a negative form. इस तरह से दोस्तों बॉन्ड एनर्जी हम प्लस या माइनस फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों. बॉन्ड एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. मैंने अभी आपको बताया, द लार्जर द बॉन्ड एनर्जी द स्ट्रॉन्गर इज द केमिकल बॉन्ड. दोस्तों तो बॉन्ड एनर्जी हम डिफाइन कैसा कर सकते हैं. The bond energy, that is bond enthalpy, it is also called bond dissociation energy or average bond energy or bond state, describe the amount of energy stored in a bond between atom in a molecules. Specifically, it is the energy that needs to be added for the homolytic or symmetrical cleavage of a bond in the gaseous phase. In chemistry, the bond energy also called as mean bond enthalpy. आप देख सकते हो दोस्तों बॉन्ड एनर्जी को हम क्या क्या कह सकते हैं. बॉन्ड डिसोसिएशन, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, मीन बॉन्ड एनर्जी, मीन बॉन्ड इंथैल्पी, क्यों बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऐसा हम बॉन्ड एनर्जी का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं दोस्तों. स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, मैंने आपको बताया बॉन्ड एनर्जी से हम कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं दोस्तों. इट इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन one moles of bond are formed from the isolated gaseous atoms, or the amount of energy required when one moles of bond are broken as to separated isolated gaseous atoms. दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग कंपाउंड है, जैसे कि ऑरेंज, एप्पल्स, बनाना, इस सब की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती है दोस्तों. इसलिए कुछ कंपाउंड हम इजीली खा सकते और कुछ कंपाउंड हम इजीली खा नहीं सकते. जैसे कि जो कच्चे चावल होते हैं दोस्तों, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हम उन्हें खा पाते हैं दोस्तों. लेकिन अगर हम उसको पकाते तो उसका नेचर चेंज होता है, बॉन्ड एनर्जी चेंज होती है, और बॉन्ड एनर्जी चेंज होने की वजह से वो कंपाउंड वीक बनता है और उसे हम इजीली खा सकते हैं दोस्तों. आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग कंपाउंड मैंने दिखाई दोस्तों. जो पिज़्ज़ा बर्गर होते हैं दोस्तों, अगर वो हमारे बॉडी में जाते हैं तो बॉन्ड तैयार करते हैं और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है. इससे पिज़्ज़ा बर्गर इजीली हमें बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते दोस्तों, उसका पचन इजीली नहीं हो सकता है दोस्तों. इसलिए पिज़्ज़ा बर्गर कम से कम खाया करो दोस्तों. वैसे दोस्तों जो बहुत सारी मिठाइयाँ होती है हमें बॉडी में रखे अलग अलग तरह के बॉन्ड तैयार करते हैं और बॉन्ड स्टेबल होने की वजह से हमें बॉडी से वो जल्दी बाहर नहीं निकल सकते दोस्तों. इसे वो चर्बी के फॉर्म में हमें बॉडी में क्या होते हैं दोस्तों, सेव होते हैं दोस्तों. यहाँ भी आप देख सकते हो मटन, चिकन, उसमें भी कुछ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं दोस्तों जो हमारे बॉडी के लिए घातक है दोस्तों. जैसा हमने देखा स्टेबलाइजेशन के लिए बॉन्ड एनर्जी यूज करते हैं, वैसा दोस्तों दूसरा फॉर्म भी होता है रेजोनेंस एनर्जी, जिसे हम कहते हैं. ये रेजोनेंस एनर्जी भी हम स्टेबिलिटी उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी पर्टिकुलरली कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम यूज करते हैं. तो दोस्तों ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होती है? द अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम. The stability of the conjugated system or conjugated compound are explained with the help of resonance energy. The consider the example. This is a cyclohexene, the compound containing only one double bond. Therefore, it is not a conjugated system. The chain of enthalpy for this compound is 120 kJ per mole. Now, cyclohexadiene. The cyclohexadiene containing two double bonds. The expected value for this compound is 240 kJ per mole. But due to conjugation, the resonance take place. Therefore, the value of this compound is decreases, and this decrease in value are measured in terms of resonance energy. Therefore, expected value of this compound is 240 kJ per mole. But practical value of this compound is 231 kJ per mole. Therefore, how much amount of energy is decreased due to resonance? That requires resonance energy. Therefore, theoretical energy minus calculated energy means 240 minus 231, that gives 9 kJ per mole. Therefore, 9 kJ per mole is the resonance energy of the cyclohexadiene. Similarly दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो बेंजीन है,
जिसे हम साइक्लो हेक्साट्राइन भी कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिकल एनर्जी हम जब कैलकुलेट करते हैं दोस्तों इसकी इंथैल्पी, तो ये दोस्तों 208 किलो जूल पर मोल आती है दोस्तों। लेकिन हमें पता है एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है दोस्तों, डबल बॉन्ड की 120 किलो जूल पर मोल होती है साइक्लोहेक्सिन में। तो यहाँ 3 बॉन्ड होने की वजह से इसकी एक्सपेक्टेड एनर्जी कितना होना चाहिए दोस्तों, थ्योरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से 360 किलो जूल पर मोल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल 208 है, मतलब कितनी एनर्जी कम हो गई, 360 माइनस 208, दैट इज 152 किलो जूल पर मोल, दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन। मतलब आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है, hence the benzene is a more stable compound due to aromatization due to resonance energy। दोस्तों हिट ऑफ कंबस चेन ऑफ इंथैल्पी से हम इंस्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी से हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ये डायग्राम दिखाई दे रहे कुछ कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी कम है तो कोई कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। हमने अभी बेंजीन की साइक्लोहेक्साडाइन की रेजोनेंस एनर्जी यहाँ कैलकुलेट करके देखी है दोस्तों। एग्जाम में आपको पूछ सकते हो कि रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की आप कैसा कैलकुलेट करेंगे या साइक्लोहेक्साडाइन की। दोस्तों डेफिनेशन क्या होती है, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड is a measure of the extra stability of the conjugated system compared to the corresponding number of associated double bond. This can be calculated from experimental measurement. नो दोस्तों हमने अभी तक फर्स्ट लॉ देखा है, फर्स्ट लॉ के अंदर ही हमें हेस लॉ देखना है दोस्तों। हेस लॉ क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं दोस्तों तो उसकी इंथैल्पी चेन होती है। अगर वो रिएक्शन हम 1 स्टेप 2 स्टेप 3rd स्टेप में करते हैं दोस्तों, कि जो भी इंथैल्पी चेन होगी वो सब स्टेप की सम होती है दोस्तों। इसके वजह से अगर कोई भी इंथैल्पी चेन होती है तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो हमेशा सेम ही होती है। अगर वो रिएक्शन हमने एक स्टेप में की हो, 2 स्टेप में की हो या सेवरल स्टेप में की हो, तो उसको कहते हैं हम दोस्तों हेस लॉ। The Hess law. The law states that the total enthalpy change during the complete course of a chemical reaction is the same whether the reaction is made in one step or in several steps. Therefore, delta S reaction equal to summation of delta S product minus summation of delta S reactant। दोस्तों हेस लॉ के ऊपर या हमने अभी तक जो भी सीखा है उसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने वाले हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कुछ रिएक्शन दिए दोस्तों, S2 plus Br2 gas that gives 2 moles of SBr gas. The given that the bond energy of S2 gas, Br2 gas, SBr gas are 435, 192 and 364 kilojoule per mole respectively. Therefore, how will you calculate the enthalpy change for the following reaction? दोस्तों आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला देखा है इसी लेक्चर में, the enthalpy change of a reaction that is equal to the summation of bond energy of reactant minus the summation of bond energy of the product। दोस्तों रिएक्टेंट क्या है इसमें, S2 मतलब हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन एज अ रिएक्टेंट एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड एज अ प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ S2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द ब्रोमीन दैट इज नथिंग बट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। therefore 435 प्लस 192। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो 2 मोल्स ऑफ SBr तैयार होता है दोस्तों, इसलिए हमें बॉन्ड एनर्जी पर मोल की दी है, इसलिए हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट में होने की वजह से यहाँ हमने उसको माइनस किया दोस्तों। देखो ये वैल्यू कितने आ गए दोस्तों, 627 माइनस 728 दैट विल बिकम माइनस 101 किलो जूल पर मोल।
मतलब दोस्तों हमने यहाँ देखा है जब भी SBr का बॉन्ड तैयार होता है, अगर एक मोल SBr का बॉन्ड तैयार करना हो तो उसमें से 101 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, रिलीज होती है। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स हम अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अलग तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो दोस्तों पहले हम हर कंपाउंड का रिएक्शन लिख लेते हैं या जैसे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ S2 is 435 है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Br2 192 है दोस्तों। टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज 435 प्लस 192 दैट इज 627 होती है दोस्तों। द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ SBr फॉर 1 मोल्स ये होती है दोस्तों 364 किलोजूल पर मोल। ये दोस्तों बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब एनर्जी क्या होती है दोस्तों, रिलीज होती है। देखो दिस इज कंसीडर्ड एज अ माइनस साइन, माइनस 364 किलोजूल पर मोल। द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ SBr फॉर 2 मोल्स इज 2 into minus 364 that equal to minus 728 kilojoule per mole। दोस्तों the total bond dissociation energy reactant and total bond dissociation energy of the product that is 627 and minus 728 kilojoule per mole। The chain of enthalpy that is the sum of the bond energy of the reactant as well as product। Therefore minus 728 plus 627 that will become minus 101 किलोजूल पर मोल। इस तरह से हम सेकंड में से भी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ये क्या होता है, अगला प्रॉब्लम देखने के पहले हम इसके ऊपर फिर से फोकस करने वाले हैं। हमने देखा है दोस्तों जब भी एक मोल कंपाउंड हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कितनी इंथैल्पी चेंज होती है, दैट इक्वल्स इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। दोस्तों यह हीट ईओर होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसके वजह से डेल्टा एस यहाँ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि आप देख सकते हो द 1 मोल्स ऑफ X5 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म XO2 plus YO। Similarly the hydrocarbon react with oxygen to always form carbon dioxide and water molecule in the gaseous phase। कौन से भी हाइड्रोकार्बन जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं दोस्तों तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल तैयार होता है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों CS4 है, मतलब कितना वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो सकता है दोस्तों, 2 वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो सकता है दोस्तों। अगर CS8 होता दोस्तों यहाँ तो 4 वाटर मॉलिक्यूल तैयार होते दोस्तों। यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन 6 है, मतलब 3 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म होना चाहिए दोस्तों, और कार्बन 2 है, इससे 2 कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होना चाहिए दोस्तों। और इसके ऊपर से ऑक्सीजन कितना मोल यहाँ लग सकता है, हम निकल सकते हैं। आप देख सकते हो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 3 मोल है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड में 4 मोल है, मतलब 3 + 4 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। देखो 7/2 मोल्स इज रिक्वायर्ड फॉर दी ऑक्सीजन फॉर दिस रिएक्शन। दोस्तों अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर हम फोकस करते हैं दोस्तों। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CS बॉन्ड गिवन दैट हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, ग्राफाइट एंड हाइड्रोजन आर 891 किलोजूल, 394 किलोजूल एंड 286 किलोजूल respectively, while the heat of sublimation of graphite is 717 kilojoule and heat of dissociation of hydrogen is 436 किलोजूल। दोस्तों हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी है CS की, लेकिन यहाँ हमें हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन दिया है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम एक एक कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन इज 891 जो हमें दी है दोस्तों। अगर मीथेन को हम बर्न करते ऑक्सीजन के साथ तो उसे हम हीट ऑफ कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रिएक्शन कैसे लिखते हैं, मीथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। दोस्तों
इसकी हीट ऑफ कंबस्शन हमें दिए, मतलब डेल्टा एस इक्वल टू कितना दिया हमें 891। इसमें हमेशा हीट इज इक्वल होती है क्योंकि दिस साइन कंसीडर एज अ माइनस, तो वो डेल्टा एस इक्वल टू माइनस 891 किलो जूल पर मोल। दोस्तों कार्बन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो डेल्टा इज गिवन माइनस 394 किलो जूल पर मोल। ऐसा दोस्तों हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन भी दिया है। हाइड्रोजन मतलब H2 व्हेन H2 burn with oxygen to form H2O gas, therefore delta is equal to minus 286 किलोजूल पर मोल। दोस्तों ये सभी रिएक्शन क्या है, कंबस्शन रिएक्शन है, करके सभी की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, या माइनस फॉर्म में आ रही है दोस्तों यहाँ हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया है। ग्राफाइट हमने देखा है दोस्तों, ग्राफाइट ये कार्बन का फॉर्म है, कार्बन कार्बोरेटर होता है, इसे हम यहाँ सिर्फ ग्राफाइट कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अभी ग्राफाइट की सब्लिमेशन रिएक्शन हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, कार्बन सॉरी द कन्वर्ट इनटू कार्बन गैस, बिकॉज सब्लिमेशन रिएक्शन में सॉलिड फॉर्म का गैस फॉर्म में कन्वर्जन होता है दोस्तों। यहाँ हीट एब्सॉर्ब होती है दोस्तों, इसलिए डेल्टा एस की साइन क्या आना चाहिए दोस्तों, प्लस आना चाहिए। डेल्टा एस इक्वल टू प्लस 717 किलो जूल पर मोल। H2 gas to use twice as gas because it is dissociation reaction. Therefore, it is absorbed, and for dissociation reaction, the delta S is positive. Therefore, delta S is equal to plus 436 किलोजूल पर मोल। मतलब दोस्तों आपने यहाँ देखा है सभी रिएक्शन यहाँ हम लिख चुके हैं, और उसका करस्पॉन्डिंग चेन ऑफ इंथैल्पी भी यहाँ लिखा है हमने दोस्तों। अब इसके ऊपर से हमें CS की इंथैल्पी निकालनी है दोस्तों। CS4 gas to use carbon plus 4 hydrogen atoms। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी हो दोस्तों, तो हम ये रिएक्शन की एनर्जी निकालनी होगी दोस्तों, और ये रिएक्शन की जो भी एनर्जी आएंगी वो 4 टाइम्स आएंगी। अगर एक बॉन्ड की एनर्जी निकालनी हुई दोस्तों, तो हमें उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इसकी एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर अभी हम फोकस करने वाले हैं। तो इसकी एनर्जी हम x कंसीडर करते हैं दोस्तों। देखो इक्वेशन नंबर 1 दो जिसमें CS4 रिएक्टर में, इक्वेशन नंबर 2 हमें इक्वेशन नंबर 6 चाहिए दोस्तों। इसे इक्वेशन नंबर 2 में कार्बन है और कार्बन की हमें जरूरत नहीं है। वैसे इक्वेशन नंबर 3 में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भी हमें यहाँ जरूरत नहीं है दोस्तों, बरोबर। आणि इक्वेशन नंबर 4 में कार्बन है, हमें यहाँ कार्बन चाहिए। इक्वेशन नंबर 5 में भी यहाँ हाइड्रोजन दिखाई देता है, और हाइड्रोजन यहाँ प्रोडक्ट में दोस्तों, तो हमें प्रोडक्ट में हाइड्रोजन चाहिए और कार्बन गैस भी हमें प्रोडक्ट में चाहिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं। अभी देख सकते हो दोस्तों कि रिएक्शन में जो मेन रिएक्शन है हमें जो चाहिए उसके हम मेन रिएक्शन कहेंगे। इधर रिएक्शन नंबर 6 द हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल से, सॉरी 4 एटम से, और रिएक्शन में 5 में हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम्स फॉर्म हो रही है। इसी रिएक्शन 5 को हम 2 से क्या करेंगे दोस्तों, यह मल्टीप्लाई करेंगे। वैसा रिएक्शन 3 देख सकते हैं वो आप, रिएक्शन 3 में H2O O2 हमारा हाइड्रोजन है जो हमें नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे इक्वेशन नंबर, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे इक्वेशन नंबर 5 को। इससे H2 के मॉलिक्यूल कितने हो गए दोस्तों, 2 हो गए। और इक्वेशन नंबर 3 में H2 के मॉलिक्यूल कितने दोस्तों, 1 है, लेकिन हमें H2 मॉलिक्यूल नहीं चाहिए दोस्तों रिएक्टर में, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 3 हमने माइनस किया है। लेकिन 2 से उसको क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 2 H2 मॉलिक्यूल हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ माइनस करना है। इस तरह से हम हेस लॉ का यूज करके ये सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आगे इक्वेशन नंबर 1 में हमने इक्वेशन नंबर 2 माइनस किया, जो इक्वेशन नंबर 1 है हम वो लिख लेते हैं पहले यहाँ। CS4 गैस प्लस 2 moles of O2 gas minus carbon sorry minus O2 gas minus 2H2 gas minus O2 gas plus carbon
in the solid form plus 2 molecules of H2 gas। हर इक्वेशन का रिएक्टेंट हमने रिएक्टर में लिखा है, हर इक्वेशन का प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट में लिखा है। प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 molecules of H2O माइनस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इक्वेशन नंबर 3 भी हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ माइनस किया है, 2 से मल्टीप्लाई करते, इसे H2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको माइनस करेंगे, देखो माइनस 2 H2O गैस। वैसा इक्वेशन नंबर 4 हमने डायरेक्ट ऐड किया दोस्तों, देखो प्लस कार्बन गैस। इक्वेशन नंबर 5 भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, देखो 2 हाइड्रोजन गैस इंटू 2 दैट बिकम 4 हाइड्रोजन गैस। इस तरह से दोस्तों अभी हमारी रिएक्शन हो गई है। अभी जो सेम टर्म्स दिखाई दे रहे वो हम क्या करेंगे दोस्तों, कैंसिल कर लेंगे। मतलब आप देख सकते हो कार्बन सॉलिड माइनस है और कार्बन सॉलिड प्लस है, ये कैंसिल हो गया। O2 गैस माइनस है, यहाँ भी O2 गैस क्या है दोस्तों माइनस है, लेकिन यहाँ प्लस 2 O2 गैस है, मतलब 2 O2 गैस माइनस प्लस 2 O2 गैस प्लस therefore will be cancel out। मतलब ऑक्सीजन गैस भी क्या होता है दोस्तों, कैंसिल होता है, ऑक्सीजन चले गया। अभी हाइड्रोजन गैस माइनस है और यहाँ हाइड्रोजन गैस प्लस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन में क्या बचा दोस्तों, सिर्फ CH4 गैस बचा है। और CH4 गैस और इधर क्या बचा है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैंसिल हो गया, प्लस 2H2 माइनस 2H2 विल बी आल्सो कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग इज कार्बन गैस प्लस 4 मोलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन हमारा बराबर है दोस्तों, जिसके जरिए हमें जो मेन रिएक्शन है वो हमें चाहिए थी। तो जैसा हम इक्वेशन का सम करते हैं दोस्तों, वैसा चेन ऑफ इंथैल्पी का भी हमें सम करना चाहिए, क्योंकि हमें हेस लॉ बताता है। तो फॉर डेल्टा S6, तो फॉर चेन ऑफ इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन 6 दैट इक्वल टू डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2। अभी इक्वेशन नंबर 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसे माइनस 2 इंटू डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 plus equation number 5 that is multiplied by 2, therefore delta S5 into 2, so this becomes putting the all value of delta S1 to delta S5 in this equation, so this equation become minus 891 minus 394 minus 2 into minus 286 plus 717 plus 2 into 436, that gives 1664 किलोजूल पर मोल। इस तरह से दोस्तों इक्वेशन नंबर 6 की हमने चेन ऑफ इंथैल्पी निकाली। लेकिन दोस्तों इक्वेशन नंबर 6 में 4 बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमें चाहिए 1 बॉन्ड की इंथैल्पी मींस बॉन्ड एनर्जी, इसलिए हम 1664 को 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो 416 किलोजूल पर मोल आता है। तो वो 416 किलोजूल पर मोल ये बॉन्ड एनर्जी हो गई दोस्तों CS की। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, the equation or reaction is given, boron oxide react with 3 molecules of H2O to form 3 molecules of oxygen plus hydroboron. So for delta S equal to 2035 kilojoule per mole. The second reaction is also given, H2O liquid convert into H2O gas, delta S equal to 44 kilojoule per mole. The H2 gas plus half O2 gas gives H2O liquid, delta S equal to minus 286 kilojoule per mole. The 2 molecules of boron react with 3 molecules of hydrogen to form the 1 molecules of hydroboron, delta S equal to 36 kilojoule per mole. दोस्तों यहाँ molecules कह रहे, यहाँ moles भी कह सकते हैं दोस्तों। अगर हम मोल कहेंगे तो सभी जगह हमें मोल कहना चाहिए, अगर हम मॉलिक्यूल कहते हैं तो दोस्तों सभी हमें मॉलिक्यूल कहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली डेल्टा SA मींस चेन ऑफ इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ फॉर फॉरवर्डिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन की हमें चेन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है दोस्तों। तो रिएक्शन क्या है दोस्तों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोरॉन प्लस 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज B2O3 सॉरी। तो दोस्तों इस रिएक्शन की हमें इंथैल्पी निकालनी है, उसे हम मेन रिएक्शन कहेंगे। आप देख सकते हो पहले रिएक्शन में B2O3 ये रिएक्टर में और मेन रिएक्शन में B2O3 ये क्या है प्रोडक्ट में, इसलिए जो पहली रिएक्शन है उसे हम रिवर्स
करते हैं दोस्तों, मतलब रिएक्टेंट हम प्रोडक्ट में लिखेंगे और प्रोडक्ट हम रिएक्टेंट में लिखेंगे। अगर ऐसा हमने किया तो उसका डेल्टा एस का साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर B2H6 प्लस 3 moles of O2 gas gives 1 moles of B2O3 plus 3 moles of H2O gas. Therefore delta S1 equal to minus 2035 किलोजूल पर मोल। दोस्तों अभी सेकंड रिएक्शन के ऊपर फोकस करो। H2O लिक्विड है और H2O यहाँ क्या है दोस्तों, गैस है। लेकिन जो मेन रिएक्शन है उसमें हमें H2O नहीं है दोस्तों। इसकी वजह से जो सेकंड रिएक्शन है दोस्तों उसे हमें माइनस करना है। वो हम एज इट इज लिख देते हैं दोस्तों, H2O लिक्विड यूज H2O गैस, दैट इज कंसिडर रिएक्शन नंबर 2। दोस्तों यहाँ मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो जो रिएक्शन नंबर 1 है उसमें 3H2 मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में आते हैं दोस्तों, और गैस में से हमें गैस कैंसिल आउट करना है क्योंकि H2O की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए 3 मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए। इसलिए हमने रिएक्शन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों। तो डेल्टा H2 को भी हमें 3 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना होगा। तो डेल्टा H2 बिकम 132 किलोजूल पर मोल, दैट इज कंसिडर इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों आप रिएक्शन नंबर 3 देख सकते हो, उसमें H2 गैस है, हाफ O2 गैस है और H2O लिक्विड फॉर्म में दोस्तों। तो दोस्तों ये रिएक्शन मैं लिख लेता हूँ यहाँ, H2 प्लस हाफ O2 गैस यूज H2O लिक्विड फॉर्म। तो डेल्टा S3 इक्वल टू माइनस 286 किलोजूल पर मोल। लेकिन दोस्तों यहाँ जो H2 गैस है वो ये हमें 3 टाइम्स लेना है। 3 टाइम्स क्यों लेना है दोस्तों, क्योंकि H2O लिक्विड यहाँ 3 टाइम्स होता है दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 में, और H2O लिक्विड हमें कैंसिल करना है, इसलिए H2O लिक्विड को हमें 3 टाइम्स लेने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो H2 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 मोल्स ऑफ H2 गैस बन जाएगा। हाफ O2 गैस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3/2 O2 गैस बन जाएगा और H2O 3 मॉलिक्यूल में आ जाएगा दोस्तों। देखो डेल्टा S3 ये 3 टाइम्स ऑफ माइनस 286 हो गया दोस्तों, तो उसकी वैल्यू आ गई माइनस 858 किलोजूल पर मोल, दैट इज कंसिडर इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों अभी जो रिएक्शन नंबर 4 दी है दोस्तों वो हमने यहाँ लिख ली है, 2 molecules of boron plus 3 molecules of H2 to form 1 molecules of hydroboron। अब मैं रिएक्शन में देख सकते हो दोस्तों, बोरॉन हमें रिएक्टर में चाहिए और 4 रिएक्शन में बोरॉन रिएक्टर में दिया है और हमें 2 टाइम्स चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 2 टाइम्स है, इसलिए हम यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों। डेल्टा S4 इक्वल टू 36 किलोजूल पर मोल, दैट इज कंसिडर इक्वेशन नंबर 4। तो दोस्तों जब भी एक रिएक्शन का हमें चेन ऑफ एंथैल्पी निकालना होता है तो रिएक्शन हमें कुछ रिएक्शन दी होती है, तो जो दिए हुए रिएक्शन है उसके जरिए जो रिएक्शन का हमें एंथैल्पी निकालना है वो रिएक्शन कैसी आ सकती है, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद आपकी वो रिएक्शन मिल सकती है, इसके ऊपर आपको सोचना होता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको खुद मैं हिंट देता हूँ दोस्तों। अगर मैं रिएक्शन में जो भी रिएक्शन हमें चाहिए उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें पहले फोकस करना चाहिए दोस्तों, और गिवन रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट में होता है तो गिवन रिएक्शन प्लस करना चाहिए। अगर गिवन रिएक्शन में रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट में होता है, जो भी मेन रिएक्शन है उसके कंपैरिजन में रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट में होता है दोस्तों, तो वह हमें माइनस करना चाहिए दोस्तों। जैसे आप इसके ऊपर काफी एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी रिएक्शन मैंने यहाँ लिख लिया है। अभी जो मेन रिएक्शन है तो उसके हिसाब से इक्वेशन नंबर जो मेन रिएक्शन है 2B प्लस 3/O2 यूज B2O3। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें प्लस करना है, इक्वेशन नंबर 2 H2 लिक्विड और H2 गैस ये हमें कैंसिल करना है, इसे हमें उसे माइनस करना है दोस्तों। इक्वेशन नंबर 3 में भी H2 लिक्विड है वो भी हमें कैंसिल करना है, इसे वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इक्वेशन नंबर 4 में बोरॉन रिएक्टेंट फॉर्म में और मेन रिएक्शन में भी बोरॉन रिएक्टेंट फॉर्म में, इसे हमें यहाँ प्लस करना पड़ेगा।
तो प्लस करने के बाद इक्वेशन नंबर B2H6 गैस प्लस 3O2 गैस रिएक्शन और इक्वेशन नंबर 2 का रिएक्शन हम माइनस करें दोस्तों, -3H2O। इक्वेशन नंबर 3 भी हम माइनस करें दोस्तों, उसका रिएक्शन है -3H2 गैस -3/2O2 गैस। इक्वेशन नंबर 4 हम प्लस कर रहे हैं, प्लस 2B प्लस 3H2 गैस टू गिव्स। अभी प्रोडक्ट में लिख लेते हैं दोस्तों। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने प्लस किया था B2O3 सॉरी प्लस 3H2O गैस। इक्वेशन नंबर 2 माइनस किया हमने माइनस 3H2O। इक्वेशन नंबर 3 भी माइनस किया है -3H2O। इक्वेशन नंबर 4 प्लस किया देखो प्लस B2H6। इस तरह से अभी हमारी इक्वेशन सब रिएक्शन का मिला के तैयार हो गया दोस्तों। अभी जो भी सेम टर्म्स होती है वो हम क्या करेंगे दोस्तों, कैंसिल कर डालेंगे। कैंसिल करने के बाद हमें हमारी मेन रिएक्शन मिल गई दोस्तों। मतलब यहाँ हम हेस लॉ यूज कर सकते हैं दोस्तों। हेस लॉ यूज करने के बाद डेल्टा S1 जो हमने ऑलरेडी प्लस किया उसकी साइन माइनस है, इसे हमने यहाँ -2035 लिया दोस्तों। इक्वेशन नंबर 2 हमने माइनस किया है, देखो 132 टेकन एज अ माइनस फॉर्म। इक्वेशन नंबर 3 भी हमने माइनस किया, देखो माइनस माइनस बिकम प्लस, देखो प्लस 858। इक्वेशन नंबर 4 हमने प्लस किया, देखो प्लस 36 दैट गिव्स -1273 किलोजूल पर मोल। दैट इज अ चेन ऑफ एंथैल्पी फॉर द अबव रिएक्शन। इस तरह से हमने चेन ऑफ एंथैल्पी हेस लॉ के जरिए कैलकुलेट की है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। देखो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।